کے اندھیروں میں خود چراغ بن کے جلو، وقت کے اندھیروں میں میاں بھیگ کے چراغوں سے روشنی نہیں ہوتی۔ یہ ہے پیغام دیا میرے اعلیٰ حضرت نے، دین کے غداروں سے دوستی نہیں ہوتی۔ بے شک کیا کہنے ہیں، کیا کہنے لے کر جانا ہے، چراغ عشق نبی ہر طرف جلائیں گے، جہاں سے کفر کی تاریکیاں مٹائیں گے، حقیر جان کر جنہیں بجھا دیا ہم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کا چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ تحریک بیداری کانفرنس کے حوالے سے ایک شعر کہ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ حضرات، ہمارا اور آپ کا تعلق جس مذہب سے ہے، اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے۔ الحمدللہ یہ دنیا کا وہ آفاقی مذہب ہے جس نے پیدائش سے لے کر موت تک انسان کو ایک کامیاب زندگی کا فارمولہ دیا ہے۔ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، تاجر ہو، عالم ہو، جاہل ہو، سماج میں کیسے جینا ہے یہ اسلام آپ کو بتاتا ہے، کیسے چلنا ہے یہ اسلام آپ کو بتاتا ہے، زندگی میں بیداری کیسے آئے گی اس کا سلیقہ آپ کو اسلام بتاتا ہے۔ ٹی وی چینل پر ایک ڈاکٹر صاحب سے کسی نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ دنیا کی بڑی بڑی کتابوں کو پڑھ کر ڈاکٹر بنے ہیں، مگر کیا بات ہے جب آپ کو شادی کرنی ہو تو کسی عالم سے پوچھتے ہیں، آپ کو جنازہ پڑھانا ہو کسی عالم سے پوچھتے ہیں، کھانا کیسے کھانا ہے کسی عالم سے پوچھتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے کسی عالم سے پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے۔ کہا کیا پتہ نہیں ہے؟ کہا دنیا کا کوئی انسان ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، پروفیسر بنا، ہم نے دنیا کی بڑی بڑی کتابیں پڑھی، مگر ہم اپنی زندگی کے معاملات میں، آخرت کے معاملات میں ہم عالموں کے محتاج ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے انسانوں کی لکھی ہوئی بڑی بڑی کتابوں کو پڑھ کر ہم ڈاکٹر بنے ہیں، مگر جو عالم بنا ہے وہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھ کر نہیں بلکہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب قرآن کو پڑھ کر عالم بنا ہے۔ کے فرمان سے مصطفیٰ کو پڑھ کر عالم بنا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، رب قدیر فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے انسان سب کو بنایا ہے مگر نمونہ مصطفیٰ جان رحمت کو بنایا ہے، نمونہ آمنہ کے لال کو بنایا ہے۔ اللہ 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 قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ہی سب سے بہترین امت ہو، اللہ نے تجھے لوگوں میں سے چن لیا ہے۔ اے مولا کس کام کے لیے چن لیا؟ رب قدیر فرماتا ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ نے اس لیے چن لیا تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور لوگوں کو برائی سے روکو۔ یاد رکھیے گا صاحب، یہ ہمارے علماء ہیں، آپ ان کے صاحب کم قیمت لباس پہ نہ جائیں، آپ ان کی ٹوٹی ہوئی جھوپڑیوں کو نہ دیکھیں، آپ ان کی کم قیمت گاڑیوں کو نہ دیکھیں، آپ ان کی مختصر زندگی کو نہ دیکھیں۔ سلطان رضا کہنا چاہے گا آپ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ تنہا ایک عالم قوم کی بھلائی کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آج ہم جس سماج میں جیت ہیں، ہم جہاں پر زندہ ہیں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ آج ہم ملک میں ہماری بیٹیاں نقاب نہیں پہنتی مگر ہم ملک میں حجاب کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ آج ہم مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد نہیں کرتے مگر آج ہم آذان کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ آج ہم قرآن کے احکام پہ عمل نہیں کرتے مگر آج ہم قرآن کی عظمت کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ایمانداری سے بتانا، آج ہم صاحب مزار بزرگوں کے کردار پہ عمل نہیں کرتے مگر مزاروں پر چادریں خوب چڑھا رہے ہیں۔ آج ہماری قوم کی بیٹیاں خاتون جنت کی سیرت کو نہیں اپناتی مگر محرم میں سیدہ فاطمہ کے نام کا چراغ خوب جلاتی ہے۔ سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے ایمانداری سے بتاؤ
कब तक सिर्फ फातिहे का चराग हमारे आंगन में जलेगा, कब तक सिर्फ हम मज़ारों पे चादरें चढ़ा कर ही जिंदगी गुजारेंगे, कब तक सिर्फ नारों के जरिए ही अपनी जिंदगी को आबाद किया जाएगा, कब तक हम सिर्फ कुरान को घरों में सजा कर रखने वाले मुसलमान बनकर जिंदा रहेंगे, कब तक सिर्फ बेटियों का नाम फातिमा रखा जाएगा, कब तक सिर्फ बेटों का नाम हुसैन रखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए माशाअल्लाह, ये माइक जो है ना आता कि कोई मुस्लिम नौजवान तकरीर सुने, जानते हैं कि उस शैतान को टेंशन है कहीं सुन लिया तो नमाजी बन जाएगा, माँ बाप की खिदमत करने वाला बन जाएगा। मुसलमानों, दिलों को दुरुस्त करो, याद रखना कब तक अपने बच्चों का नाम हुसैन रखोगे। अब वक्त आ गया है, सिर्फ नाम रखना से काम नहीं चलेगा, बल्कि बेटों को गुलामी हुसैन बनाना पड़ेगा। बेटियों का सिर्फ फातिमा नहीं रखना पड़ेगा, बेटियों को कनीज फातिमा बनाना पड़ेगा। अगर तुमने सिर्फ नाम रखा, तेरा बेटा डॉक्टर बनने के बाद तेरी इज्जत करेगा कि नहीं ये कोई नहीं जानता, तेरी बेटी कॉलेज में पढ़ने के बाद तेरी इज्जत की हिफाजत करेगी कि नहीं कोई नहीं जानता, तेरा बेटा मैट्रिक करने के बाद शराबी बनेगा या समाज का अच्छा इंसान बनेगा कोई नहीं जानता, तेरी औलादें इंटर करने के बाद जुआरी बनेगी या कमाकर कौम की खिदमत करने वाली बनेगी ये कोई नहीं जानता। इसलिए कि आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, आपके पास कोई निजाम नहीं है, आपके पास आप साहबे किरदार नहीं है। जब समाज इतना बिगड़ जाए, माँ के आंखों में आंसुओं के कतरात हो, बूढ़ा बाप दवा की दो घूंट के लिए तरस रहा हो, हमारी कौम शादियों में करोड़ों रुपए खर्च करे और तालीम के नाम पे अपने बच्चों को तालीम के लिए पढ़ाने के लिए तैयार न हो, बेटियों को अच्छा किरदार सिखाने के लिए तैयार न हो, ऐसे बिगड़े हुए माहौल में ताजी शरिया बोर्ड के उलमाए किराम ने साहब जो कदम उठाया है ये काबिल एहतराम कदम है। जबकि पूरी दुनिया सिसक रही है, यहूदी चाहते हैं मुस्लिम बेटियां आवारा हो जाए, नसरानी चाहते हैं मुस्लिम नौजवान आवारा हो जाए, काफिर चाहते हैं मुस्लिम बेटियां मुर्दे हो जाए। आपसे कहना चाहेगा ईमानदारी की बात बताओ, यही वजह है इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है, हज बाद में फर्ज है, ज़कात बाद में फर्ज है। बच्चा बालिग होगा तो नमाज पढ़ेगा, बेटी बालेगा होगी तो हज करेगी, बेटा बालिग होगा तो ज़कात देगा, बेटा और बेटी बालिग होंगे तो नमाज फर्ज होगी। मगर बात जब तालीम की आई तो आमिना के लाल ने फरमाया मुसलमान हो चुके हो, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर जरूरी है। मर्द है तो भी पढ़े, औरत है तो भी पढ़े। इस्लाम ने ये नहीं कहा मर्द पढ़ेगा औरत नहीं पढ़ेगी, औरत पढ़ेगी मर्द नहीं पढ़ेगा। या रसूल अल्लाह तालीम कब से हासिल करें, कहा नहीं पता है, या रसूल अल्लाह बता दिया जाए। आमिना के लाल फरमाते हैं उतलबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। अब जरा ठहरना, इस्लाम में तालीम हासिल करना जरूरी है, कंपलसरी है, समाज में कोई जाहिल नहीं रह जाए। लेकिन आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ तालीम का मकसद क्या है? कुरान तू बता तालीम का मकसद क्या है? आमिना के लाल के आने का मकसद क्या है? कुरान कहता है नबी के आने का मकसद ये है युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, ये नबी इसलिए आए ताकि तुझे किताब और हिकमत की तालीम दे। या रसूल अल्लाह तालीम हासिल करके क्या होगा? कहा जब पढ़ोगे उतुल इल्म दर्जात, अल्लाह ताला इल्म के जरिया तेरे रुतबे को बढ़ा देगा, तेरे मकाम को बढ़ा देगा, तेरी इज्जत में इजाफा करेगा। हल यस्तविल लजीना यालमून वल लजीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर है?
ऐसा नहीं हो सकता है। मालिक को मौला, तूने महबूब को इल्म और हिकमत सिखाने के लिए भेजा, मकसद क्या है? कुरान कहता है यो ज़क्कीकुम, ये नबी इल्म और हिकमत इसलिए सिखाते हैं ताकि तुम्हारा दिल अच्छा हो जाए, तुम्हारा समाज अच्छा हो जाए, तुम्हारा किरदार अच्छा हो जाए, तुम्हारा कैरेक्टर बेहतर हो जाए, तुम्हारी सोसाइटी बेहतर हो जाए। मगर आज हमारी कौम का नौजवान कहता है हम किसी मौलाना के कहने पे कोई बात क्यों करेंगे, हम किसी मौलवी के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारेंगे, हम किसी मौलाना के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारेंगे। हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम चाहे कान की बाली पहने, हम चाहे हाथ में कड़ा पहने, हम चाहे लंबी बालें रख ले, हम चाहे दाढ़ी छिला ले, हमें कोई बोलने वाला क्यों है। आज हमारी कौम की बेटियां कहती है हम किसी मौलाना के कहने पे अपनी जिंदगी क्यों गुजारेंगे। हम चाहे सर पे दुपट्टा रखे, हम चाहे सर पे दुपट्टा न रखे, हमारी जुल्फें खुली रहे चाहे बंधी रहे, किसी मौलवी का किया जाता है। हमारा जिस्म हमारी मर्जी। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, जानती हो जिन औरतों ने कहा था हमारा जिस्म हमारी मर्जी, वो तस्लीमा नसरीन बन गई। जिन्होंने कहा था हमारा जिस्म हमारी मर्जी, वो सानिया मिर्जा बन गई। जिन्होंने कहा था हमारा जिस्म हमारी मर्जी, वो कौम में आवारगी की शिकार हो गई। मगर याद रखना, जो बेटियां कहती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी, जरा उनका मुस्तकबिल देख लेना, जरा उनका प्रेजेंट देख लेना। मगर मैं तुझसे कहना चाहूंगा, आज भारत की पढ़ी लिखी महिलाओं, तुम इस्लाम पर एतराज करती हो, हम किसी मौलवी के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारेंगे। तो सुल्तान रज़ा का चैलेंज है, बड़ा कॉन्फिडेंस है तुझे अपने जिस्म पर, बड़ा नाज है तुझे अपने जिस्म पर। तो एक बच्चा स्कूल में बाद में जाता है, कॉलेज में बाद में जाता है, मदरसे में बाद में जाता है, अरे दुनिया में भी बाद में आता है। सबसे पहले एक बच्चा तेरे पेट में पहले आता है। अगर अल्लाह अगर तुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने जिस्म पर, तो अपने पेट से कैसे बच्चे को जन्म दे जो दुनिया में बाद में आए। 1 से 100 तक गिनने वाला पहले बन जाए, ए से Z तक पढ़ने वाला पहले बन जाए, क से क्या तक पढ़ने वाला पहले बन जाए। कहेगी नहीं मौलाना साहब, बच्चा पैदा पहले होगा, फिर 3 साल की उम्र होगी तो पढ़ेगा, 16 साल की उम्र में मैट्रिक करेगा, भला कोई पेट में पढ़ता है। मैंने कहा हाँ, यही चैलेंज दुनिया की सारी महिलाओं के लिए है। जिन औरतों ने कहा हमारा जिस्म हमारी मर्जी, साहब न वो खुद अच्छी जिंदगी गुजार पाई, न उनकी औलादों ने उनसे अच्छा सबक लिया। मगर आओ इस्लाम के दामन में आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत में आओ। सैयदा फातिमा उम्मुल खैर है, सरकार गौसे आजम की माँ है, सैयदा खातूने जन्नत की खादिमा है। उन्होंने कहा था ए मौला, जिस्म मेरा है मर्जी तेरी है, आँखें मेरी है हया फातिमा ज़हरा की है, बाजू मेरे हैं ज़ेवर सैयदा खातूने जन्नत की सीरत वाला है, जिंदगी मेरी है किरदार फातिमा ज़हरा का है। तो जिस माँ ने कहा था जिंदगी मेरी है मर्जी मौला की है, उस माँ ने अपने बेटे गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी को दुनिया में जन्म बाद में दिया है, पेट में ही 17 पारा का हाफिज़े कुरान बना दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सुनो मेरी कौम की माओ, सबसे पहले बेटा हो या बेटी तेरी गोद में जाती है। अगर माँ संवर गई बेटी संवर जाएगी, माँ संवर गई बेटा संवर जाएगा, माँ संवर गई गोद में साहब हीरे जवाहरात नहीं, वक्त के सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे नौजवान लेंगे। अगर तुमने अपने कदम को अच्छा बना लिया, कसम खुदा की दुनिया हसीन हो जाएगी। इसलिए कि बच्चों की पहली दरसगाह माँ की गोद है। क्या है, जरा हाथ उठाकर बोल दे, माँ की गोद। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, पहली दरसगाह क्या है, माँ की। और जोर से मजमे से आवाज आनी चाहिए, क्या है, माँ की गोद। इसलिए घर जाना ना तो अपनी बहन से कहना, कब तक ताबीज से काम चलाओगी, खुद अच्छा बन जाओ तेरी औलादें ठीक हो जाएंगी। जा करके अपनी बहुओं से कहना, कब तक ताबीज के भरोसे काम चलाओगी, तुम नेक बन
जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी औलादें नेक बन जाएगी। सुल्तान रज़ा माँ बाप से कहना चाहेगा, बच्चे जब पढ़ने के लायक होते हैं तो मौलाना तेग अली की बारगाह में आकर किताबों को देखकर पढ़ते हैं, और बच्चे जब गोद में होते हैं तो माँ बाप के किरदार को देखकर पढ़ते हैं। इसलिए समाज को संवारने के लिए माँ को संवरना होगा, समाज को संवारने के लिए बाप को संवरना होगा, माँ बाप को खुद संवरना होगा। माँ नेक औलादें नेक होंगी, बाप नेक औलादें नेक होगी। इस्लाम तू बता, जब इंसान जिंदगी दुनिया में आता है तो पहला हक उसका क्या है? इस्लाम कहता है माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उसकी गोद में जन्म लेने वाला बेटा हो या बेटी, पहले उसे तालीम दे, पहले उसे तालीम से आरास्ता करे, पहले उसे शिक्षा दे, उसे बेहतरीन तालीम दे। तालीम का मकसद क्या है? तालीम का मकसद ये नहीं है इंसान मैट्रिक कर ले और शराबी बन जाए। तालीम का मकसद ये नहीं है इंसान डॉक्टर बनकर जुआ खेलने वाला बन जाए। तालीम का मकसद ये नहीं है कि कौम की बेटियां कॉलेज में जाकर सिगरेट पीने वाली बन जाए। तालीम का मकसद ये नहीं है नौजवान MBBS डॉक्टर इंजीनियर बनकर जहेज ले लेकर शादियां करने वाले बन जाए। तालीम का मकसद ये नहीं है कि बेटा चेंबर में बैठा हो और बाप नौकर की तरफ बाहर खड़ा हो। तालीम का मकसद ये नहीं है इंसान जुआरी बन जाए। तालीम का मकसद ये नहीं है बेटियां बॉयफ्रेंड के साथ भागने वाली बन जाए। तालीम का मकसद ये नहीं है कि बेटियों के दुपट्टों से, बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर जाए। तालीम का मकसद ये नहीं है औलादों की निगाहों से शर्मो हया की चादरें उतर जाए। तालीम का मकसद ये है कि बेटी साहबे इखलाक बन जाए। तालीम का मकसद ये है पढ़ने वाला व्यक्ति समाज का एक अच्छा इंसान बन जाए। अगर दिन डिस्पेंसरी में गुजरे तो आजान हो तो सर बसुजूद हो जाए। साहब तालीम का मकसद ये है कि एक तरफ इल्म से आशना हो और दूसरी तरफ उसका इखलाक भी अच्छा हो, किरदार भी अच्छा हो। आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा है, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से बताइएगा। मदरसों का आप बहुत हिसाब लेते हैं, आज जिससे पूछिएगा मौलवी साहब मदरसे की बात बंद कर दो, इस मदरसे को, मदरसे में लड़के आवारा हो रहे हैं। चलिए साहब मदरसे का एक बच्चा आवारा हो गया, मदरसों में ताला लगा दिया जाए। आप मदरसे में क्या पढ़ाते हैं? अंग्रेजी, इंग्लिश, मैथ क्यों नहीं पढ़ाते हैं? लेकिन मैं अब फख्र से कह सकता हूँ कोई ऐसा भारत में इदारा नहीं है जहाँ पर इंग्लिश और मैथ की पढ़ाई नहीं होती हो। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर खुद स्कूल में टीचर भी है, मदरसे का नाजिम भी है, दरसगाह में भी बैठता है, जलसागाह में भी हाजिर है। अब हमारे उलमा इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं। आलिमों की बात सुल्तान रज़ा आपसे कहना चाहेगा, मदरसे का हिसाब लेने वालों शौक से लो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मदरसे से कितने बच्चे फारिग होते हैं? हमारी कौम के 1% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, 99% बेटे और बेटियां स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं। आपने मदरसों का बहुत हिसाब लिया है। मदरसे से फारिग होने वाला नमाजी है कि नहीं है? मदरसे से फारिग होने वाला कुरान पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? मदरसे से फारिग होने वाला अच्छा अमल करता है कि नहीं करता है? आप मदरसे में जाकर कहते हो मौलाना तेग अली साहब मेरा बेटा आपके पास पढ़ता है मगर घर आकर नमाजें नहीं पढ़ता है, जरा उसे समझाइए। आपने कभी स्कूल में, मैं बेशक मैं कहना चाहता हूँ अपने इन उलमाए किराम से, मदरसे के फारिग होने वाले बच्चों से, जब मदरसे से पढ़कर निकलना तो कुरान की अजमत का ख्याल रखना, रसूलुल्लाह की सीरत का ख्याल रखना। कोई कदम गलत बढ़ाने से पहले सोच लेना कि पूरे इस्लाम की इज्जत तेरे साथ है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कभी कॉलेजों में भी जाकर हिसाब लिया है? आपने कभी स्कूलों में भी जाकर पूछा है ओ स्कूल के प्रिंसिपल साहब मेरी बेटी आवारा नहीं थी, कॉलेज में आने के बाद आवारा कैसे बन गई है? बेटा कलम पकड़ने वाला था, कॉलेज में आकर तमचा बंदूक चलाने वाला कैसे बन गया है? मेरा बेटा शराबी नहीं था, कॉलेज में आकर शराबी कैसे बन गया है? कॉलेज का प्रिंसिपल कहेगा चले जाओ, हम यहाँ किताबें पढ़ाने आए हैं, तेरे बेटे को किरदार पढ़ाने नहीं आए हैं, तेरी बेटियों को किरदार पढ़ाने नहीं आए हैं। मगर आपका बेटा और बेटी भूले से इन उलमा की
बारगाह में कभी पढ़ने आ गया तो हमारे ये उलमा आपके बेटे को कुरान भी पढ़ाते हैं, साथ में नबी का किरदार पढ़ाते हैं। कौआ की बेटियां पढ़ने आ जाए तो ये कुरान भी पढ़ाते हैं, साथ में खातून जन्नत की सीरत भी पढ़ाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, तन्हा हमारी जमात का एक आलिम निकलने के बाद मदरसे से गांव की जामे मस्जिद में खड़ा होता है, खड़े होकर तकरीर करता है, ऐ लोगों याद रखना अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इस्लाम में शराब पीना हराम है, ज़ना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, सूद खाना हराम है, रिश्वत लेना हराम है, जहेज मांगना हराम है। जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। खाने से पहले पड़ोसियों का ख्याल रखो, समाज में एक अच्छा इंसान बनकर रहो। कभी जुआ न खेलना, कभी झूठ न बोलना, कभी गीबत न करना, कभी किसी की बहू बेटी पे गंदी नजरें न डालना, बुरा न मानना। मदरसे से फारिग होने वाला एक बच्चा पूरी काम की भलाई की बात करता है, मगर कॉलेज से लाखों स्टूडेंट निकलते हैं, कॉलेज से सैकड़ों स्टूडेंट निकलते हैं। उन्होंने कितनी भलाई की बातें की है, उन्होंने कितनी इस्लाह की बातें की है। आप कहेंगे मौलाना तो क्या किया जाए, सबको मौलाना बना दिया जाए। मैं कहूँगा नहीं। ये बेटा है, बच्चा कहाँ जा रहा है, जरूरत हो गई है, जलसा खत्म हो गया, घर जाएगा, माँ पूछेगी जलसे में क्या सीखा था, कहेगा तकरीर सुनने के वक्त चले आए थे। मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये मेरी कौम के शहजादों, मैं ये नहीं कहता आप कॉलेजों में न पढ़ो, डॉक्टर बनना भी जरूरी है। डॉक्टर नहीं बनोगे इलाज कौन करेगा, इंजीनियर नहीं बनोगे घरों के नक्शे कौन बनाएगा, वकील नहीं बनोगे हमारे मुकदमों को कौन लड़ेगा, IPS अफसर नहीं बनोगे कौम को इंसाफ कौन दिलाएगा। ये तेरे लिए सब बनना जरूरी है। फिर आप कहोगे मौलाना बेटियों को मुर्तद होने से बचाया कैसे जाए, बच्चों को शराबी होने से बचाया कैसे जाए, बच्चों को जुआरी होने से बचाया कैसे जाए, जहेज की लानत को खत्म कैसे किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ताजी शरिया बोर्ड ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, मगर सुल्तान रजा एक पैगाम लेकर के आया है। अगर आपने उलमा के साथ देने का वादा किया, जैसा कुरान ने कहा है, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, भलाई और नेकी के कामों में लोगों के हाथ को मजबूत करना मुसलमानों का किरदार है, और बुराई के कामों में हाथ खींच लेना ये मुसलमानों का किरदार है। जरा ठहरना, इसका एक ही रास्ता है। आप कहेंगे वो रास्ता क्या है, बच्चे 6 साल के होते हैं तो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। 6 साल से पहले जो 3 साल की जिंदगी है, जिसे हम लोग नर्सरी, LKG और UKG कहते हैं, साहब इस 3 साला जिंदगी को हर बच्चा और बच्ची की जो 3 साला जिंदगी है, इसे उलमा की गोद में दीजिए। आप कहेंगे मौलाना करना क्या होगा, जहाँ आपकी मस्जिदें हैं, जहाँ आपका मकतब है, वहीं पर आप अपने इन बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए, बेटियों के मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल खोलिए। आप इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल खोलिए, बुरा मत मानिएगा। आप कहेंगे मौलाना पैसा कहाँ से आएगा, सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आपकी 100 घर की आबादी में हर महीना एक बच्चे के फी के तौर पर, अगर घर का एक छोटा बच्चा है तो 500 से 1000 रुपए आप फी देते हैं। 50,000 से लाख रुपए CBSE के नाम पर, डॉन बॉस्को के नाम पर, इमानुअल के नाम पर, आप साहब दिल्ली स्कूल के नाम पर, इस प्राइवेट स्कूलों के नाम पर आप कई लाख रुपए महीने का खर्च करते हैं, मगर आपका बच्चे का मुस्तकबिल खतरे में है, आपकी बेटी की जवानी खतरे में है, मगर आपने इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल खोला। ताजी शरिया बोर्ड से राब्ता कायम कीजिए। 22 गांव है, 22 गांव में इस्लामिक मॉडल स्कूल कायम कीजिए। इनकी निगरानी में कहिए हजरत हम 5000 10,000 सिर्फ एक इमाम को नहीं देंगे। कहेंगे क्यों, कहा इसलिए हजरत कि 10,000 में एक इमाम का क्या होगा, हम चाहते हैं इमाम को गांव में इस्लामिक मॉडल स्कूल का प्रिंसिपल बना दे, उसके जिम्मे एक स्कूल लगाए। कहा क्यों, कहा
लिए हजरत कि 100 बच्चों को एक इमाम 1 घंटे में कैसे पूरा कुरान पढ़ाएगा, कैसे दीन की तालीम देगा। दीन की तालीम के नाम पर आज लीपापोती चल रही है। कहा करना क्या है, कहा हम 50,000 रुपए महीने का इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल पर खर्च करेंगे। जो हम भी कॉन्वेंट में देते थे वो हम अपने इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल में देंगे। इमाम साहब के साथ एक बेहतरीन हाफिज और कारी रखेंगे, 2 बेहतरीन मास्टर रखेंगे और अपने ही स्कूल में सिलेबस बनाएंगे। इसी 3 साल में नर्सरी LKG UKG में 1 से 100 भी पढ़ाएंगे, क से ज्ञा भी पढ़ाएंगे, अलिफ से या भी पढ़ाएंगे, नूरानी कायदा भी पढ़ाएंगे, कुरान मजीद भी पढ़ाएंगे, शरीयत भी पढ़ाएंगे, बेटियों को जन्नती ज़ेवर भी पढ़ाएंगे। हर जुमरात को इस्लामिक माहौल के 1 घंटे का स्पीच भी दिलवाएंगे। और हमारे ये आलिम आपका के गांव का कोई बच्चा और बच्ची स्कूल में जाने से पहले 3 साल इस्लामी माहौल में दीनी और असली दोनों तालीम को हासिल करे। हमारा आलिम आपके बेटा और बेटी को उस इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल में पढ़ाएगा और शराब की बोतल की तस्वीर बोर्ड पर बनाएगा और लिखेगा, बच्चों ये क्या है? कहा सर ये शराब की बोतल है। कहा इस्लाम में शराब पीना हराम है। बच्चे बचपन में जान जाएंगे इस्लाम में शराब पीना हराम है। अब साहब ये हमारे आलिम बोर्ड पर जहेज के सामान की तस्वीर बनाएंगे, लिखेंगे बच्चों ये क्या है? शादी में मिलने वाला जहेज है। बच्चों इस्लाम में जहेज मांगना हराम है, जहेज मांगना हराम है। छोटी छोटी बच्चियों को बताया जाएगा, अल हयाओ शोबतुम मिनल ईमान। बेटियां हया ईमान का हिस्सा है, हया ईमान का हिस्सा है। बताया जाएगा ये माँ है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अब आपके बच्चे 3 साल में जहां इंग्लिश हिंदी मैथ सीखेंगे वहीं कुरान भी पढ़ लेंगे, वहीं हदीस की कुछ किताबें भी पढ़ लेंगे, वहीं पर नमाज का तरीका सीख लेंगे, माँ बाप के अदब का सलीका सीख लेंगे, शराब जना जुआ की हुर्मत को जान लेंगे। अब आपका बच्चा जब 6 साल का हो गया अब उसे स्कूल में ले जाइए, कॉन्वेंट में ले जाइए। न ईमान का खतरा है न किरदार का खतरा है। अब वो बच्चा जब बड़ा होगा, आपकी बेटी जब जवान होगी, कॉलेज का कोई आवारा लड़का आपके बेटे से कहेगा, चल बेटा चल कर भाई शराब पी लेते हैं, मेरी शादी है, शादी की पार्टी में आ जाना, माज़ल्लाह शराब पिएंगे। तो हमारी कौम का ये छोटा बच्चा कहेगा, मेरे दोस्त मैं शराब नहीं पी सकता। कहेगा क्यों नहीं पी सकता? कहा स्कूल में आने से पहले, कॉलेज में आने से पहले, बचपन में तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस के जरिया इस्लामिक मॉडल स्कूल की बुनियाद रखी गई थी। उसमें मैं पढ़ता था, मौलवी साहब ने पढ़ाया था कि इस्लाम में शराब पीना हराम है। मेरे दोस्त मैं पानी पी सकता हूँ, मैं शरबत पी सकता हूँ, मैं दूध पी सकता हूँ, कोको कोला पी सकता हूँ, मगर जिंदगी में कभी शराब। अरे हाथ उठाकर बोल दे जिंदगी में कभी शराब नहीं। हाथ उठाकर बोले जिंदगी में कभी शराब नहीं पी सकता। साहब उसका दोस्त कहेगा क्या हो गया, थोड़ा सा पी ले। कहेगा नहीं इस्लाम में हराम है। कहेगा मेरी दोस्ती का वास्ता, कहेगा मैं तेरा दोस्त बाद में हूँ, मुस्तफा जाने गुलाम पहले हो, गुलाम पहले हो। मेरी कौम के नौजवानों बताओ, क्या कोई बाप चाहेगा उसका बेटा शराबी बन जाए? नहीं। क्या कोई बाप चाहेगा उसका बेटा शराब पिए? क्या कोई माँ चाहेगी उसकी बेटी शराब पीने वाली बन जाए? नहीं चाहेंगे। आपने भारत की सड़कों पर देखा होगा, लिखा रहता है शराब पीकर गाड़ी चलाना। जरा हाथ उठाकर बोल दे शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। मैंने पूछा पुलिस वाले से क्यों? कहा मौलाना साहब नहीं मालूम, अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पी ले तो गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी, बैठने वालों की जान को खतरा है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा अगर गाड़ी चलाने वाला शराबी हो जाए तो
घर में रहने वालों की जिंदगी, गाड़ी में रहने वालों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही मेरी कौम का नौजवान शराबी बन जाए, कौम की नौजवान लड़कियां शराब पीने वाली हो जाए, तो कसम खुदा की घर में रहने वालों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, माँ बाप की आबरू खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए आज के तहरीक बेदारी से पहला पैगाम लेकर जाओ कि हम जिंदगी में हलाल पिएंगे मगर जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे। कितने नौजवान हैं जो जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे? हाथ उठा करके बोल दे तो कितने नौजवान हैं? माशाअल्लाह, सारे नौजवान बड़े नेक आदमी है। आप सारी तकरीरें तो मैं नहीं करूंगा, कुछ तकरीरें हुजूर गाज़ी मिल्लत भी फरमाएंगे, लेकिन फकीर का एक जुमला इसे नोट करके जाना। ये मेरी कौम के नौजवानों, जरा ईमानदारी से बताना, एक माँ तुझे किस लिए पढ़ाती है, एक बाप तुझे किस लिए पढ़ाता है? इस्लाम में नमाज के बाद अगर किसी की खिदमत का हुक्म है तो माँ बाप की खिदमत का हुक्म है। याद रखना, माँ की दुआ के बगैर आज जो समाज की बात है ना, बुरा मत मानना। तुम चाहे मजार पर सोने की चादरें चढ़ा दो, तुम चाहे मजार के गुंबद को सोने का बना दो, तुम चाहे अपनी मस्जिद के मीनारे सोने के बना दो, किसी को कोई खतरा होने वाला नहीं है। तुम्हारी मस्जिद का मीनार कई अरब का बन जाए, गैरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे मजार के मीनारे सोने के बन जाए, गैरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी साहब नाम ने हाथ खानकाहे चांदी की बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो गैरों को तब पड़ेगा जब तेरा बेटा डॉक्टर बाद में बने, आशिके मुस्तफा पहले बन जाए, इंजीनियर बाद में बने, साहब आशिके मुस्तफा पहले बन जाए। इसलिए कि जो यहूदी चाहते हैं वो अपने बेटे को न बनाना, जो नसरानी चाहते हैं अपने बेटे को न बनाना। यहूदियों ने कहा था मुसलमानों को मिटाने के लिए तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को जहर खिलाने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को दो चीजों से दूर कर दो, मुसलमान खुद ब खुद मिट जाएंगे। कहा वो दो चीजें क्या है? कहा एक कुरान की तालीम से दूर कर दो, दूसरा नबी की सुन्नत से दूर कर दो। दो चीजों से मुसलमानों को दूर कर दो, इन्हें मारने की जरूरत नहीं है, बम बरसाने की जरूरत नहीं है। आज यही मुल्क में हो रहा है, आज जमाना यही चाह रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने बेटों को आलिमों से जोड़िए, अपनी छोटी छोटी बच्चियों को इल्मे दीन सिखलाइए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके आंखों में आंसुओं के कतरात के अलावा कुछ नहीं होगा। जब आपका बेटा दीन पढ़ेगा, जब आपका बेटा दीन से जुड़ेगा, तो ये उलमा बताएंगे बेटा मर्द पर पहला हक उसकी माँ का है। किसका है? मर्द पर पहला हक किसका है? जितने लोग माँ से प्यार करते हैं जरा हाथ उठाकर बोल दे, किसका है? माँ का। जरा आवाज ऊंची आनी चाहिए। मर्द पर पहला हक किसका है? माँ का। अब जरा याद रखिएगा, ईमान इस्लाम की शहजादियों, तुम अपने बच्चों को सिर्फ मोटू पतलू दिखाती हो, तुम उन्हें सिर्फ झूला झूलाती हो, तुम उन्हें दुनिया के गाने और फिल्में दिखाती हो। अपने बच्चों को कभी नबी की हदीसें भी सुनाया करो, कभी इमाम हुसैन का किरदार भी पढ़ाया करो, कभी गौसे आजम के बचपन की अदाएं भी सुनाया करो, कभी अपने बच्चों को आला हजरत का किरदार भी बताया करो। मगर हमारी माँ जानेगी तब ना। आज हमारी माओं को इतनी फुर्सत कहाँ है कि ये दीन सीखे। लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा, सुनो सुनो इस्लाम की शहजादियों और इस्लाम के शहजादों, मर्द पे पहला हक उसकी माँ का है और औरत पर पहला हक उसके शौहर का है। आला हजरत सरकार से किसी ने पूछा, हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत फरमाते हैं, मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो। बाप तेरा भी हाकिम है, तेरी माँ का भी हाकिम है। पूछा गया, हुजूर इतना बता दीजिए, मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत फरमाते हैं, अगर 100 रुपए कमाना 75 माँ को दे देना और 25 बाप को दे देना। तेरी कमाई में पहला हक तेरी माँ का है, तेरे बाप का है, तीसरा हक बीवी और बच्चों का है। मगर आज इरादा बदल गया। आज इन पढ़े लिखे नौजवानों से पूछिएगा तो इसकी बीवी समझती है मर्द मेरे शौहर की कमाई है इसलिए हुकूमत मेरी है। अपनी सास से कहती है मेरा शौहर कमाता है, हम
रابطہ کیا جاتا ہے۔ اسلام کی شہزادیوں یہ باتیں تم اس لیے بولتی ہو کہ تم دین سے آشنا نہیں ہو، تیرا شوہر دین کا جانکار نہیں ہے، مگر اسلام کے دامن میں اسلام کے بوڑھے ماں باپ غلطی ہماری بھی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو 14 سال 15 سال دنیا کی موٹی موٹی کتابیں پڑھا دی، مگر سیرت مصطفیٰ کی ایک پتلی کتاب اپنی اولاد میں پڑھا نہ سکے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج ایک باپ بڑھاپے میں چائے کی ہوٹل میں چائے کا محتاج ہے، آج ماں بڑھاپے میں بہترین علاج کا محتاج ہے۔ مرد کی کمائی میں شریعت کہتی ہے پہلا حق اس کی ماں کا ہے، مگر آج رمضان کا مہینہ آتا ہے، 15 رمضان کو ماں فون کرتی ہے، بیٹا سال بھر سے ممبئی میں کما رہے ہو، ایک بار بھی ماں باپ کو پیسہ نہیں بھیجا ہے، بیٹا عید آنے والی ہے، تیرے بابا کا دوا بھی لینا ہے، اور بیٹے تیری ماں کے لیے بھی کپڑے بنوانے ہیں، تیری ایک غریب بہن بھی ہے، تیرا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، ذرا کچھ پیسے بھیج دے۔ آج کی بے غیرت اولاد کہتی ہے اپنے بیوی بچوں سے بچے گا تب نہ بھیجیں گے، بے غیرت بہو کہتی ہے کہہ دو اپنے ماں باپ سے ہمارا تو چل ہی نہیں رہا ہے، ہم آپ کو کہاں سے دیں گے۔ سلطان رضا کہنا چاہے گا تو اپنی ماں باپ سے کہنے والوں کہ بچے گا تب نہ تجھے دیں گے۔ قرآن کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب ماں باپ کے سامنے جانا اپنی جوانی کو یاد نہ کرنا، اپنے جوانی کے غرور کو مت یاد کرنا، بلکہ اپنے بچپن کو یاد کرنا۔ کیا بچپن میں کبھی تیری ماں نے تجھ سے کہا تھا بیٹا کھانا بن گیا ہے پہلے میں کھاؤں گی بچے گا تو تجھے کھلاؤں گی؟ کیا کبھی تیری ماں نے کہا تھا تیرے پاپا نے مٹھائیاں لائی ہے پہلے ہم کھائیں گے بچے گا تو تو کھائے گا؟ بلکہ تیری ماں نے تو کہا تھا بیٹا کھانا تیار ہے پہلے تو کھا لے تیری ماں بعد میں کھائے گی۔ اور کہا تھا بیٹا میں نے پیسے کما کر کے لائے ہیں، اے بیٹا عید میں پہلے تیرا کپڑا بنے گا تیرے باپ کا کپڑا بعد میں بنے گا، میرے لال فکر نہ کرنا، پڑھتا جا، تو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو انجینئر بننا چاہتا ہے، تو اپنی مولانا مفتی بننا چاہتا ہے، بیٹا پڑھتا جا، فکر نہ کرنا، میری جتنی کمائی ہے نا سب لگا دوں گا، مگر تجھے سماج میں نیچے گرنے نہیں دوں گا۔ اللہ اللہ جانتے ہو تیرا باپ کہتا ہے زمین بیچ دوں گا مگر تجھے ڈاکٹر بنا کر کے دم لوں گا۔ میری ماں کہتی ہے بیٹا فکر نہ کرنا، اگر تیرے بابا نے پیسہ نہ دیا نا تو تیری ماں اپنے کان کی بالی کو بیچ کر تجھے پڑھائے گی، تیری ماں پاؤں کے پائل کو بیچ کر تجھے پڑھائے گی۔ سلطان رضا کہنا چاہے گا جو جس ماں نے کہا تھا بیٹا سب پہلے تیرے لیے ہے ماں باپ کے لیے بعد میں ہے، آج وہی ماں باپ بڑھاپے کے عالم کو پہنچ گئے ہیں، باپ کے بازو کی طاقت نے دم توڑ دیا ہے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے، ماں روٹیاں بنانے کے لائق نہیں رہ گئی ہے، تیرا باپ کمانے کے لائق نہیں رہ گیا ہے، تو آج وہی باپ جب مجبور ہو گیا تو تو نے اپنی ماں کو بیوی کا محتاج بنا دیا ہے، تو اپنے باپ سے کہتا ہے بچے گا تو دیں گے، تو نے اپنے باپ کو چائے کا محتاج بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے آج تو نمازیں پڑھتا ہے مگر کامیاب نہیں ہے، آج تو حج کرتا ہے مگر کامیاب نہیں ہے، آج تو عمرہ کرتا ہے مگر کامیاب نہیں ہے، آج تو مزاروں پہ 1 کروڑ چادریں چڑھاتا ہے مگر تو کامیاب نہیں ہے، تو ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بننے کے بعد بھی کامیاب نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے پاس سب ہے مگر جس ماں نے جنم دیا اس ماں کی دعائیں نہیں ہے، جس باپ نے تجھ سے پیار کیا اس باپ کا دست شفقت نہیں ہے۔ اس لیے آج کے اس تحریک بیداری کانفرنس سے دوسرا پیغام لے کر جاؤ، دلی کمانا، ممبئی کمانا، سعودی عرب میں کمانا، جھارکھنڈ میں کمانا، جب تنخواہ اٹھانا تو سب سے پہلے اپنی ماں کو فون کرنا، امی جان آج مجھے تنخواہ ملی ہے بتاؤ کتنے پیسے کی ضرورت ہے، آپ کو کتنا پیسہ چاہیے، پاپا کے علاج کے لیے کتنا بھیج دوں، پتا غریب بہن ہے اسے کتنا بھیج دوں، چھوٹے بھائی کے لیے کتنا بھیج دوں۔ جانتے ہو جب تیرا فون آتا ہے نا ماں کتنا پیسہ بھیج دوں، ماں کا
कलेजा 56 इंच का हो जाता है। माँ खुश हो जाती है, तेरे बाप से रात की तन्हाई में कहती है, सुना है बेटे का फोन आया था, कह रहा था माँ कितने पैसे की जरूरत है, बताओ तुझे मैं कितना पैसा दूं। बाप कहता है पैसा मांगा तो नहीं है, कहा नहीं, कहा बेटे से कह देना पहले अपनी बीवी का ख्याल कर लेगा, पहले अपने बच्चों का ख्याल कर लेगा, फिर मेरे लिए पैसा भेजेगा। रात की तन्हाई होती है, सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सोने में लगी है, तेरी बीवी तेरी कमाई हुई रोटियां खाकर सो जाती है, तेरे बच्चे तेरे कमाए हुए पैसे से रिस्क खाकर के सो जाते हैं, तेरे दोस्त तेरे पैसे की पार्टियां खाकर सो जाते हैं, मगर रात की तन्हाई में तेरी मोहब्बत के लिए कोई जागता है और तेरी माँ है, कोई तेरे लिए दुआ के लिए हाथ उठाता है तो तेरा बाप है। रात की तन्हाई में तेरी माँ हाथ उठाती है, ऐ मालिको मौला परवरदिगारा, मेरा बेटा कमा कर मेरा ख्याल करता है, ए मौला मेरे बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती दे दे। तेरा बाप दुआ के लिए हाथ उठाकर कहता है, मौला मेरे बेटे को अच्छी जिंदगी दे दे, उसकी कमाई में बरकतें दे दे। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जिस दिन तूने इस मसले पे अमल कर लिया, अपनी कमाई में पहला शेयर माँ बाप को दे दिया, पहला हिस्सा माँ बाप को दे दिया, इंशाअल्लाह इस साल तू लाखपति है, अगले साल करोड़पति हो जाएगा। इस साल करोड़पति है, अगले साल अरबपति हो जाएगा। शर्त ये है कमाना तो पहला हिस्सा अपनी माँ और अपने बाप। तो कितने नौजवान हैं, तकबीर, बाबा से मतलब दोनों हाथों को लहरा करके बताएं कि हम लोग मुकम्मल सहन साजी हो रही है और सहन में हमारी बातें समा भी रही है। इस्तेकबाल कर ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला सीवानी। तो कितने नौजवान हैं जो इंशाअल्लाह कल से कमाएंगे तो पहले अपने माँ बाप को हिस्सा देंगे कमाई में? कितने नौजवान है, जरा हाथ उठाएं तो कितने नौजवान? सारे नौजवान माओ बहनों देख लेना। तुम कहते हो जलसों से क्या होता है? जलसा साहब हुजूर ताजुश्शरिया से मोहब्बत करने वालों से जलसा कराने का सलीका सीख लीजिए। ताजुश्शरिया बोर्ड के जुमला अराकीन उलमाए किराम, इन्होंने जलसे को बामकसद बनाया है। जलसे बेमकसद होंगे, कौम की इस्लाह कहाँ से होगी? आओ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, इजाजत है एक सौ बातें और बता दूं? अरे बोलिए इजाजत है तो जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दीजिए या हबीब अल्लाह। सारी बातें मैं ही नहीं बताऊंगा, इसलिए जरा इसे याद रखिएगा। आप ईमानदारी से बताइए, आपके मोहल्ले में इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल चलना चाहिए? कितने लोग चलाना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए तो सारे लोग चलाइएगा। ताजुश्शरिया वक्फ बोर्ड के उलमा का साथ दीजिएगा। अरे बोलिए साथ दीजिएगा। याद रखिएगा, ये मेरी कौम के लोगों, मैं आपका ममनून व मशकूर हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी दौलत किस काम की जब आपकी बेटी की इज्जत ही न बचे? आपकी कमाई किस काम की जब आपकी औलादे पावकार नहीं बने? आज सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, आपने सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सुना होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? सलाहुद्दीन अय्यूबी वो है जब फातह मिस्र बन करके मिस्र गए तो यहूदियों ने उनकी राह में फूलों को बिछा दिया, जवान हसीनों जमील लड़कियों को खड़ा कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी तलवार को नस्ब किया, कहा है लोगों तुमने इन फूलों को क्यों बिछाया है? क्या पता नहीं है सलाहुद्दीन फूलों को मसलने नहीं आया, फूलों की हिफाजत करने आया। फूलों की हिफाजत करने आया है। ये बेटियां जो है ना भारत की, चाहे हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, क्रिश्चियन की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, ये बेटियां हमारे मुल्क की फूल हैं। हम इनकी इज्जत को मसलने नहीं आए हैं, इनकी इज्जत की हिफाजत करने के लिए। बहुत अच्छा, जिंदाबाद।
ان کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے آئے ہیں. اس لیے کبھی کسی کی بیٹی پہ گندی نظریں نہ ڈالنا, کبھی کسی کی بیوی پہ گندی نظریں نہ ڈالنا. غور سے سنو یہ میری قوم کے نوجوانوں, آج ذرا یاد رکھنا, صلاح الدین ایوبی نے دوسرا جملہ کہا تھا, اے یہودیوں تم کیا چاہتے ہو ایوبی کی تلوار ان حسین لڑکیوں کے زلفوں میں الجھ کے رہ جائے. اس لیے ان نوجوانوں سے سلطان رضا کہنا چاہے گا, تیرے باپ نے ٹیویشن سینٹر ڈاکٹر بننے کے لیے بھیجا ہے, تیرے باپ نے کالج میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے, تو قلم تھام کر ڈاکٹر بنے. اس لیے اپنے قلم کو کسی حسینہ کی زلفوں میں الجھنے نہ دینا. اور اسلام کی بیٹیوں تم کان کھول کر سن لو, تم کالج میں پڑھنے جاتی ہو, تم ٹیویشن سینٹر میں پڑھنے جاتی ہو, تم اسٹڈی سینٹر میں پڑھنے جاتی ہو, کالج کا کوئی آوارہ لڑکا تیری کلائی تھامنے کی بات کرے, کہنا ٹھہر جا, تو اپنی کلائی پکڑانا چاہتا ہے. جس باپ نے مجھے قلم پکڑایا ہے ذرا اس باپ سے پوچھ تو لینے دے کہ تیری کلائی پکڑنے کی اجازت ہے کہ نہیں. کلائی پکڑنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے. آج بیٹیاں سمجھتی ہے یہ جوانی میری ہے جہاں چاہے لوٹا دے, یہ حسن میرا ہے جسے چاہے اس کا عاشق بنا دے, یہ آنکھیں میری ہے جسے چاہے دیکھے, موبائل میرا ہے جب چاہے فیس بک پہ تصویر اپلوڈ کر دے, یہ واٹس ایپ میرا ہے جسے چاہے فرینڈ بنا لے. اسلام کی شہزادیوں, اسلام نے ایک دائرہ مقرر کیا ہے, بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کی ہے. اسلام نے کہا الحیا و شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا حصہ ہے. اے بیٹیاں پڑھنے کے لیے جانا لیکن عزت کا سودا نہ کرنا, اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھنا, اپنی ماں کی عزت کا خیال رکھنا. جب تو گھر سے نکلتی ہے نا شیطان چاہتا ہے تیری عزت. زندہ باد, زندہ باد. کھڑے ہو جائے سارے.